Hello dear pharma aspirants, welcome to my channel Pharma Exam Circle. Here is a pharma MCQ challenge for you, GPAT, NIPER, Drug Inspector, Pharmacist aspirants. It's very important for you. Watch till the end. Like, share and subscribe Pharma Exam Circle. आज का पहला क्वेश्चन, which hormone is secreted by pancreatic beta cell? ऑप्शन ए ग्लूकागॉन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी सोमेटोस्टैटिन, ऑप्शन डी कॉर्टिसोल. इट इज़ अ वेरी बेसिक एंड वेरी इजी क्वेश्चन. अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. आपके लिए 3 सेकंड्स का हम वेट करेंगे. सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. इट इज इंसुलिन. इंसुलिन इज रिलीज फ्रॉम बीटा सेल ऑफ pancreas. Let's see its explanation. See, pancreatic hormones and cells. Pancreatic hormones and cell, alpha cell, beta cell, and delta cell. There are 3 types of pancreatic cell: alpha cell, beta cell, delta cell. Alpha cell releases glucagon, which increases blood glucose level. Beta cell releases insulin, which decreases blood glucose level. And delta cell, it is a somatostatin release, inhibits insulin and glucagon. Beta cell are major insulin secreting cells in isolate of Langerhans. Isolate of Langerhans are the cells that are present in pancreas, and in that beta cells releases insulin, which decreases blood glucose level. For exam tip, the quick and fast, if you has to keep this in mind, that is pancreatic beta cells secrete insulin, the key hormone that lowers the blood glucose level. And memory trick, beta मतलब best for blood sugar, that is blood sugar control, that is insulin. So this was our first question. Now we will move to our next question. Next question is, which test is used to evaluate kidney function? Option A ECG, option B serum creatinine, option C hemoglobin, option D liver function test. We will wait for 3 seconds. You can comment your answer. So the correct answer for this question is option B. Serum creatinine is used to evaluate the kidney function. Let's see its explanation. Kidney function. Kidney function is evaluated by serum creatinine and blood urea. Serum creatinine and blood urea, these are the two major things that are checked for kidney function test. Creatinine is a waste product filtered by kidneys. Rise indicates impaired function. See, द कैरेटिनिन क्या होता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो किडनी उसको फिल्टर करके, अगर कैरेटिनिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है अपने बॉडी में तो समझ लेना है किडनी उसको एक्सक्रीट नहीं कर रही है. तो किडनी एक्सक्रीट नहीं कर रही है मतलब अपना किडनी का इम्पेयर्ड फंक्शन प्रॉपरली नहीं है. सो उससे अपने को पता चल जाएगा किडनी किस तरीके से फंक्शन कर रही है. हेल्दी किडनी नॉर्मल कैरेटिन, इम्पेयर किडनी कैरेटिनिन हाई हो जाएगा. एग्जाम टिप, सीरम कैरेटिनिन क्या होता है, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड होता है फॉर किडनी फंक्शन इन ऑल फार्मा एग्जाम्स. सारे फार्मा एग्जाम्स में अगर पूछा जाएगा किडनी टेस्ट के लिए कौन सा है तो सीरम कैरेटिनिन. ये बहुत सारे एग्जाम्स में हम लोगों को देखने को मिलता है, जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट. रिमेंबर, कैरेटिनिन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो किडनी फंक्शन कम. सो वी विल मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. So the question is, which drug is used in status epilepticus? Option A phenytoin, option B diazepam, option C carbamazepine, option D valproate. If you know the correct answer, you can comment in comment box. We will wait for 3 seconds. So the correct answer is option B, diazepam. And explanation for this is, see, status epilepticus, continuous seizure lasting greater than 5 minutes or recurrent seizure, that is called as status epilepticus, without recovery of consciousness. कॉन्शियसनेस की रिकवरी भी नहीं होती. अब इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए अपने को रैपिड एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन यूज करना पड़ेगा.
और बेंजोडाइजेपिन में वहाँ पे कौन सा ऑप्शन था, डाइजेपम। डाइजेपम क्या होता है, तो बेंजोडाइजेपिन का ही ड्रग होता है। और ये क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है फॉर इमीडिएट कंट्रोल ऑफ सीजर इन स्टेटस एपिलेप्टिकस, बिकॉज रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। आईवी रूट से देने से, आईवी रूट या फिर रेक्टल से देने से उसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है डाइजेपम। सो इट इज ड्रग ऑफ चॉइस इन स्टेटस एपिलेप्टिकस। सो फर्स्ट लाइन ड्रग्स क्या होते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस में, बेंजोडाइजेपिन, और उसमें भी पूछा जाए तो डाइजेपम उसको आईवी रूट रेक्टल रूट से दिया जाता है इन स्टेटस एपिलेप्टिकस, कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which drug is calcium channel blocker? Option A enalaprine, option B amlodipine, option C losartan, option D propanol. We will wait for 3 seconds. You can comment your answer in comment box. So the correct answer for this question is option B, amlodipines. Dipines are dihydropyridines, that is a class in calcium channel blockers. All dipines are calcium channel blockers. So amlodipine. See, block L type. There are 3 types of calcium channels. L type calcium channel is found in heart, and this L type calcium channel स्मूथ मसल एंड हार्ट, वेस्कुलर स्मूथ मसल एंड हार्ट में देखा जाता है, और उसको ब्लॉक करने का काम कौन करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो उसके वजह से क्या होता है सर, तो उसके वजह से वेस्कुलर स्मूथ मसल अगर तो वैसोडाइलेशन होता है, तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, और हाइपरटेंशन में, एंजाइना पेक्टोरिस में ये यूज़ किया जाता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, वेरापामिल, लिटियाजिम। ठीक, कैल्शियम एंट्री अगर होती है तो एल टाइप कैल्शियम चैनल में, तो कैल्शियम चैनल उसको ब्लॉक करता है, कैल्शियम की एंट्री नहीं होने देता है, वैसोडाइलेशन कॉज करता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है। एम्लोडिपिन क्या होता है, डायहाइड्रोपायरिमिडिन, दैट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, और ये एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। और अगर क्विकली रिमेंबर करना है तो AMLO से एम्लोडिपिन थिंक कर लेना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organelle is responsible for detoxification of drug? Option A ribosomes, option B smooth endoplasmic reticulum, option C lysosomes, option D Golgi apparatus. 3 सेकेंड का टाइम है आपके पास, आप कमेंट कर सकते हैं अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो। So the correct answer is option B, smooth endoplasmic reticulum. And see the explanation. See, site of drug metabolism and detoxification is smooth endoplasmic reticulum. Why? Because it contains cytochrome P450 enzymes, mixed function oxidase. See, it converts lipophilic drug जो भी होते हैं उसको हाइड्रोफिलिक प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स। प्रिपेयर्स ड्रग फॉर एक्सक्रीशन, और ये क्या करते हैं, ड्रग को एक्सक्रीट करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन करता है, लाइसोसोम जो होता है तो डाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल करता है, गोल्गी एपरेटस मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग में हेल्प करता है। सो ये थे डिफरेंट ऑर्गन्स और उसके रोल्स। अगर आपको किसी भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर नोट्स भी बना सकते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स होते हैं जो मेन प्लेयर्स होते हैं किसके लिए, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। ये बहुत शॉर्ट एंड इजी एक्सप्लेनेशन था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which vitamin deficiency causes megaloblastic anemia? Option A vitamin A, option B vitamin B12, option C vitamin D, option D that is vitamin K. 3 सेकेंड का टाइम है आपके पास, आप कमेंट कर सकते हैं आपका आंसर अगर आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता हो तो। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। एक्सप्लेनेशन,
मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है ड्यू टू इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस प्रॉपर न होने की वजह से होता है। विटामिन B12 एंड फोलेट बोले तो विटामिन B9, ये क्या होते हैं, डीएनए सिंथेसिस के लिए एसेंशियल होते हैं। अब विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाएंगे तो मेगालोब्लास्ट दैट इज लार्ज इमेच्योर आरबीसी बोन मैरो में बनती है, उसके वजह से क्या होता है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। नॉर्मल आरबीसी प्रिकर्सर नॉर्मोब्लास्ट मैच्योर्स नॉर्मली, और डीएनए सिंथेसिस अगर इम्पेयर हो जाता है, विटामिन B12 कम हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, मेगालोब्लास्ट दैट इज लार्ज एंड इमेच्योर आरबीसी प्रिकर्सर। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में आरबीसी का साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि लार्ज बन जाती है और इमेच्योर आरबीसी प्रिकर्सर बन जाता है। सो विटामिन B12 के डिफिशियंसी से क्लासिक कॉज ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये पूछा जाता है किसमें, एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which drug undergoes extensive first pass metabolism? Option A propanol, option B ethanol, option C digoxin, option D insulin. So the correct answer for this question, you can comment in your comment box. We will wait for 3 seconds. First we will give priority to you, pharma aspirants. Okay, the correct answer for this question is option A, that is propanol. Propanol is the highest first pass metabolism होने वाला ड्रग है। एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाईएस्ट होने वाला कौन सा है, तो प्रोपेनॉल है। अब वाई, तो उसका एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन में देखिए, ड्रग दैट इज ऑब्जर्व फ्रॉम जीआईटी, तो पोर्टल सर्कुलेशन लीवर में पहुंचेगा, और लीवर में एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो होते हैं हाई हेपेटिक एक्सट्रैक्शन अंडरगो एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जितने ज़्यादा लिपिड सोल्यूबल ड्रग होगा उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा। सो ओरल ड्रग अगर एब्जॉर्ब करोगे तो पोर्टल सर्कुलेशन में जाएगा, लीवर मेटाबॉलिज्म में पहुंचेगा, और रिड्यूस ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दिस इज कॉल्ड ए फर्स्ट पास इफेक्ट। सो प्रोपेनॉल क्या होता है, हाईली लिपिड सोल्यूबल होता है, उसके वजह से हेपेटिक एक्सट्रैक्शन उसका बहुत ज़्यादा होता है, और इसके वजह से वो एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म दैट इज 75% तक का उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। सो अगर आपको मेमोरी ट्रिक रखना है तो प्रोपेरा से प्रो से याद रखना, प्रो इन फर्स्ट पास, दैट इज प्रोपेरानॉल। Next question, and today's last question of this session. Hope you enjoyed the questions and helpful for your preparation. So last question, which antibiotic inhibits bacterial DNA gyrase? Option A penicillin, option B ciprofloxacin, option C vancomycin, option D erythromycin. Okay, pharma aspirant, comment your answer in comment box. Let's check how many of you get correct. So the correct answer for this MCQ is, that is ciprofloxacin. Ciprofloxacin inhibit DNA gyrase. DNA gyrase is inhibited by fluoroquinolones, and fluoroquinolone is ciprofloxacin. Explanation, डीएनए गैरेज क्या होता है, तो डीएनए गैरेज को टोपोआइसोमरेज 2 भी बोला जाता है। ये किसके लिए एसेंशियल होता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन जब होता है तो उसमें नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, तो डीएनए में सुपर कॉइलिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से डीएनए खराब हो जाता है। तो टोपोआइसोमरेज 2 डीएनए गैरेज क्या करता है, उस खराब हुए कॉइल्ड वाले पार्ट को कट करता है, और जो फिर उसको साइड करता है, और जो बराबर होता है फिर वो डीएनए को ज्वाइन करता है। तो इस तरीके से मतलब डीएनए की जो सुपर कॉइलिंग होती है, डीएनए खराब होता है तो उसको बचाता है कौन, डीएनए गैरेज और टोपोआइसोमरेज 2। उसी को इनिबिट करने वाले कौन से होते हैं, फ्लोरोक्विनोलन्स क्या करते हैं, डीएनए गैरेज को इनिबिट करते हैं, और उसके वजह से जो डीएनए का सुपर कॉइलिंग होते रहता है, और डीएनए क्या होता है, तो खराब हो जाता है। तो डीएनए को इनिबिट कर देते हैं, डीएनए खराब हो जाता है, उसके वजह से ब्रेकेज ऑफ डीएनए होता है और सेल की डेथ हो जाती है। तो बैक्टीरिया डीएनए गैरेज एक्टिव होता है तो डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप, सेल डेथ कॉज कराते हैं फ्लोरोक्विनोलन्स। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या होता है, फ्लोरोक्विनोलन को एग्जांपल होता है, डीएनए गैरेज को इनिबिट करता है, वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज हो जाता है। मेमोरी ट्रिक के लिए ध्यान में रखिए, सिप्रो यानी कट्स डीएनए, गैरेज यानी स्टॉप द डीएनए। ओके, सो इस तरीके से अपन ने पूरे कंप्लीट कर लिए एमसीक्यूज आज के सेशन के, और होप ये आपको आपके एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल रहेंगे, और आपका बेसिक नॉलेज टेस्ट करने के लिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आसान से आपको
इम्पोर्टेंट लगे होंगे। सो इसी तरीके से एक डेली एमसीक्यूज के लिए और डेली लेक्चर्स के लिए फार्मा एग्ज़ाम सर्कल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इंस्टा पे भी हम आपको मिल जाएंगे, इंस्टा पे भी आप जाइए, वहाँ पे भी हम एमसीक्यूज अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू।